Jai Hind everyone. We know that as AI is rapidly evolving, so that its usage. From using ChatGPT to the usage in the medicine, targeted medicine, AI is going to play a pivotal role. But presently, human race is not having the question what it can do, because we know that it's a evolving process. Most likely, AI will be doing everything. Means from if anything has entered into our daily affairs, then certainly it is bound to do everything, or at least will play a significant role in everything. So yes, but the major question in front of human race is what it should do. Basically, the values AI will follow, how we can make AI ethical. So in this lecture, we are going to learn the AI, that is artificial intelligence, from the ethical lens. So before we begin the lecture, let's understand what in reality AI means. Okay, AI, that is artificial intelligence. Okay, so it's artificial intelligence. Now, when we talk about the artificial intelligence, what is intelligence? For a human, intelligence is the one who can learn. Simple. For a human is called intelligent when he can or she can learn. Basically, यार ये बड़ा intelligent लड़का बहुत जल्दी सीख गया यार ये तो. This is the intelligence. When I say artificial, what is artificial? Non-human things, machines and computer. So basically, when machines and computer start behaving like humans and do the self-learning as well, we call it artificial intelligence. So basically, it's about simulation of human learning. Okay, so what we can say, when our machines, computers do simulation just like human learning, we call it artificial intelligence. Yes. Now, when we talk about ethics, in layman terms, let's not get very much into the detail. Ethics are the guiding principles for any human being to do what is right, what is wrong, to identify what is right, बेसिकली. ठीक है, तो एथिकल प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं क्या सही है क्या नहीं सही है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट एआई एथिक्स, लेट्स से एआई एथिक्स वन बाय वन ना वी विल बी एनालाइजिंग. सो व्हाट इज एआई एथिक्स, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एथिक्स क्या है. बेसिकली प्रिंसिपल्स तो ये भी होंगे, वैल्यूज तो ये भी होंगी, गाइडलाइंस तो ये भी होंगी. बट द प्रॉब्लम हियर लाइज, एथिक्स एंड ह्यूमंस वी आर द स्टेक होल्डर्स. हमारी एथिक्स, मेरी एथिक्स मेरे ऊपर डिपेंड करेगी. मुझे करप्शन करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे टाइमली क्लास लेनी है, मुझे नहीं लेनी है, ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस है. बट व्हाट अबाउट द एआई, एआई की वैल्यूज क्या है. तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू लुक फॉर द एथिक्स इन यूआई, यू हैव टू लुक फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स एज वेल. So you can say that AI ethics is nothing but principle that stakeholders use. Okay, AI ethics are the principles, values or guidelines stakeholders use. किस चीज के लिए? For development as well as usage of AI. इमेजिन अ सिनेरियो, मैं कार बना रहा हूँ. ठीक है, मैं कार बना रहा हूँ, ड्राइवरलेस कार, और वो एआई ड्रिवन है. ठीक है, वो एनालाइज करता है कि आसपास कौन सा व्हीकल कितनी दूर है, कौन सामने है. ठीक है, एंड मैंने उस पर बोल दिया, मैंने फीड कर दिया, एल्गोरिदम बायस दे दिया कि इन एनी केस अगर एक्सीडेंट का केस हुआ तो आपको बुढ़े को यानी ओल्डर पीपल को नहीं बचाने का ट्राई करना है व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द ह्यूमन ऑफ यंगर एज. तो उसको मैंने फीड कर दिया है कि अगर डेथ किसी की इनएविटेबल है इस कार की टक्कर से, तो लेट इट बी ओल्डर पीपल. बट व्हाट इफ द केस, मैंने देखा चाइल्ड तो यंग है. ठीक है, चाइल्ड तो यंग है, बट ही इज सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, या वो ऑलरेडी ऐसे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है कि वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो बच्चा जो है वो पड़ा हुआ है. ठीक है, मतलब नियर टू डेथ.
अब इस केस में एथिक्स मेरा डिलेमा में हूँ, वेदर आई शुड सेव द ओल्ड पीपल और द यंग चाइल्ड इफ आई हैव टू चूज वन। बट मैं कार पे तो ऑलरेडी फीड कर चुका हूँ ना, नहीं ओल्डर वाले को नहीं, तो इन रियलिटी आई लॉस्ट बोथ द लाइफ। So basically it's about the stakeholders from the development to usage of AI कि कौन कैसे कर रहे हैं, इन सब की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। अगर मैं कोई यूज कर रहा हूँ AI तो प्रॉम्प्ट तो डालूंगा ना, मैं क्या प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ। अगर मैं डीप फेक जनरेट कर रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, ना कि वो AI डेवलपर जिसने वो AI डेवलप किया। Getting it? So basically when you talk about the AI ethics, these are the principal value or guidelines used by stakeholders to develop or use the AI. Fair enough? Now, this whole term of the AI, who has given it? Remember the name. John McCarthy coined the term AI. Okay, so he coined the term AI. Okay, now moving further, if you look from the perspective, मैंने यहाँ पे बोला stakeholders. Who all are stakeholders in this? Let's understand. Stakeholders of AI. First, AI. If any invention is there, it is solving some problem. है ना? अगर किसी इन्वेंशन की लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है, अगर किसी इन्वेंशन को स्केल किया जा रहा है, तो इट मीन्स इट इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। ऐसी कोई भी चीज स्केल नहीं की जाती जो प्रॉब्लम ना सॉल्व कर रही हो। एंड प्रॉब्लम को स्टडी कौन करते हैं? ऑब्वियसली अवर एकेडमिशियंस। ओके, सो academicians will solve the problems or will study about the problems. Then suppose कोई चीज बन गई है, it's a double-edged sword. For double-edged sword, we need to control it, and we the people whom we did give the responsibility to control the things, it is the government. Earlier time it used to be king. तो अगर जहाँ पे राजा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सुल्तान है, किंग है, सऊदी में प्रिंस है, तो ये उनकी ड्यूटी है, मतलब बेसिकली नेशन स्टेट की ड्यूटी है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी की ड्यूटी है। तो व्हाट वी कैन से, अगला स्टेक होल्डर होगा गवर्नमेंट, कि अगर कोई चीज स्केल हो रही है तो यार उसको कैसे रेगुलेट करना है, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। नाउ इफ एनीथिंग देयर इन द नेशन स्टेट, don't you think there should be the international cooperation as well? Now when you need international cooperation, so you need international entities. For example, you had OECD, अभी हम इनके इनिशिएटिव्स के बारे में भी देख लेंगे क्या किया, UN है, then Action AI Summit. Can we say that these organizations are involved in nothing but regulating the AI in the international sphere? और जब इंटरनेशनल स्फीयर पे होगा तो नेशनल लेवल पे कॉपरेट होगा, नेशनल लेवल पे कॉपरेट होगा तो अकेडमिशियंस को दोबारा बुलाया जाएगा। नाउ वी कैन नॉट इग्नोर द रोल ऑफ नॉन प्रॉफिट्स। ओके, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दे प्ले क्रिटिकल रोल बिकॉज दे वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। और एआई में जो एक सबसे बड़ा इशू माना जाता है कि इट विल बी dehumanizing things. For example, let's understand जॉब मार्केट है, ठीक है। मैं आपको नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट याद दिलाता हूँ। तो क्या बोला था उन्होंने कि आई विल नेवर अलाउ फॉर द टाइम बीइंग इन द नियर फ्यूचर ड्राइवरलेस कार्स इन द इंडिया। व्हाई ही सेड सो? The only purpose was to say that most of the people over here will become jobless, and where would I give the job? Fair enough. Now this statement of him in reality benefits lakhs of drivers. However, the background was that one non-profit organization did work in the background on the same. They did the study.
So non-profit organizations act as bridge between union and state, or say governments and citizen of any country. So this bridge is actually non-profit organization, non-governmental organizations. So they too are the stakeholders. Fair enough. Last, but second last, private. Always remember, if anything is being scaled up, it is not the government that will scale up. Private has to earn the profit from the innovations. The private will be there. So they should come on the platform. They should be identified as the stakeholder. मतलब developers को हम ignore नहीं कर सकते ना. कल को डेवलपर ने कुछ ऐसा मॉडल ही बना दिया जहाँ पे सिर्फ न्यूड्स कन्वर्ट हो रही है, न्यूड से वीडियो बन रहे हैं. देयर आर मिस्चीवियस पीपल इन दिस यूनिवर्स, आई विल से. गेटिंग इट? नाउ इन सच केसेस डेवलपर शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. सरकार कितने भी रूल बना ले, लेकिन अगर किसी डेवलपर ने बना दिया तो देयर शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. ये थोड़ी कह सकते यार एआई की टेक्नोलॉजी से मैं तो ट्रायल पे कर रहा था, मैं कुछ भी बना दिया. इट शुड नॉट बी द केस. देन the last but not the least, the one who puts the prompt should be held accountable. User. मेरे हाथ में बंदूक है, किसी ने बंदूक बनाई, it's completely fine. But where should I fire? That depends on my hand, my will. तो what prompt is being given? वो तो यूजर की डिस्क्रिप्शन पे है. If the user is creating some fake video, fake narrative and having some communalism, यार वो एआई बनाया था वीडियो एडिटर को काम को इजी करने के लिए. बट ऐसा कुछ नहीं है. गेटिंग इट? तो ये स्टेक होल्डर्स हैं. ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन आई टीच एथिक्स इज मोर अबाउट टू आइडेंटिफाई द राइट स्टेक होल्डर्स. व्हेन यू आइडेंटिफाई द राइट स्टेक होल्डर्स, यू विल जनरेट द वैल्यूज ऑफ ईच. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग अ ब्रीफ समरी ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. academicians having the right problem statements, having the solution to the future upcoming problems, it is their role. Research and development का role academicians का है. Government, rules, regulation, कितना open रहना है AI को, कितना regulate करना है, कितना use में रखना है, it depends on the government. International government, it should not create the disparity. For example, पाकिस्तान जीवन में कभी AI नहीं develop कर पाएगा, वो चाइना और other nations से भीख मांगता फिरेगा. Then you have to understand कि हाँ, अगर एआई से कहीं हेल्थ पे कुछ बेनिफिट हो सकता है तो पाकिस्तान को भी वो दे दो टैग. गेटिंग इट? अगर इफ एनी नॉन स्टेट एक्टर, एंटी स्टेट एक्टर स्टार्टेड यूजिंग एआई ऑटोमेटेड वेपन्स, कहाँ से आया भाई उसके पास? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को करना पड़ेगा ना कॉपरेशन. वन कंट्री इज यूजिंग एआई, अनदर इज नॉट, तो रिच एंड पुअर का डिवाइड बढ़ता जाएगा. तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अगेन इनका डिवाइड बढ़ता जाएगा. Which is against the principle of equity and justice. Getting it? Then comes the non-profit organizations. So you have the resources, you have the funding, you have to act as a bridge. तो act करिए ना, lobby करिए ना right thing के लिए. You create these things. You have a significant role to play. Then comes the private organizations. You are not here to just earn profit. You have some social responsibility. So whatever you are bringing in terms of AI, it should be there as well. है ना? It should be justified as well. It should be ethically correct as well. Now, in the last user, why the prompt? If you are putting any prompt, just ensure why the prompt. Because I will discuss this further as well. But if you are giving any prompt, you are using a good amount of energy as well. These AI models are run by the electricity, data centers. You know that your prompt has a cost. To make your life easy, AI is there, but that has a cost. That is the reality. Fine. Chalo. So now let's understand some core principles of AI. Okay? Core principles on what AI should work. Please do make this diagram, it will help you.
2 3 4 5 6 7. Okay, done. So first principle that you have to understand is fairness. Okay, so AI should be fair. Second one is privacy and security should be upheld. Privacy and security it will talk about. Okay, third one, it should be dear to the humanity, so humans should be at the central position. Fair enough. Then social and environmental benefit, so it will talk about social and environmental benefits. Okay, social and environmental benefit, reliability and safety. Just note it down, then I will explain one by one. Reliability and safety, then transparency and explainability. Last but not the least, accountability and the responsibility. You know, these 7 principles you should remember in any case, and you will find that it is being repeated in different initiatives of different organizations, different nations. If you remember these 7 principles, your AI ethical concerns and ethical dilemmas will be over. We will just understand how it is there. Okay? First, it talks about the fairness. So AI should be fair. It should be given to the all the countries, rich, poor. At the same time, it should be biased free. If your AI is biased, suppose my algorithm is biased, I'm having some caste bias, I'm training some AI. So certainly my AI will be the caste biased. Getting it? It will have some influence. So fairness principle needs to be met. Then the second talks about the privacy and security. This is the reason why we say we need data localization in the India itself, because we do not know what if our countrymen data goes to any other country, how they are going to use. First, privacy. Right to privacy is our fundamental right, and through Puttaswamy judgment under Article 21. Okay, so it comes under the Article 21. So right to privacy, अगर AI आपका right to privacy का हनन करता है, violate करता है, when that is not correct. कैसे करेगा violate वो कैसे करेगा? Just remember one thing, ठीक है? Just one thing. For example, deep fake बन गया, right to privacy गया, security गया, तो Article 21 compromise हो रहा है हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में. Then humanity, dehumanize कर रहा है AI, ठीक है? वर्क चला गया, इसलिए we are not allowing ना. तो AI usage should be there only if it promotes the human interest. अगर ह्यूमन इंटरेस्ट प्रमोट नहीं कर रहा, देन इट इज नॉट राइट थिंग टू डू. Fair enough. Then it says social and environmental benefits. You know, power is required to run the data centers, and the data centers are the fuel for AI. ठीक है, उन्हीं डेटा के बेसिस पे चल रहा है ना पूरा AI. तो उस एनवायरमेंटल कॉस्ट, आप गिबली इमेज बना रहे हो, वो एथिकल है? एक बार देखो. फ्रॉम माई परस्पेक्टिव 1 or 2 ट्राइज ठीक है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट यू आर जस्ट कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, क्योंकि आपको मजा आ रहा है. आपके मजे के चक्कर में कितना एनर्जी रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, कितना डेटा सेंटर में एनर्जी यूज हो रहा है. हैव यू एवर थॉट अपॉन? You know that ChatGPT itself says कि भाई slow down, our systems are crashing the way you are asking for the commands for the Ghibli image. Getting it? Then it talks about reliability and the safety. AI कितना reliable है? For example, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट ये ChatGPT सेव करते हैं. एक तो ChatGPT आप करोगे तो आपका दिमाग कम हो जाएगा चलना. भाई वो तलवार है, उसको डेली शार्प करना जरूरी है, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा ना. तो रिलायबिलिटी, व्हेन आई टॉक अबाउट द रिलायबिलिटी, ठीक है, कितनी रिलायबल है इंफॉर्मेशन, वो कहीं की इंफॉर्मेशन कहीं लिख देता है. ट्रंप को मैक्सिमम वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप बताता है, नॉट राइट. तो यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई.
क्या वो सेफ है या कुछ इशू क्रिएट हो रहा है। देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी। हियर ट्रांसपेरेंसी, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू हैव यूज्ड, वेदर इट्स प्रेडिक्टेबल और नॉट। उस डेटा से सच में वही प्रेडिक्शंस आएगी, वही प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आपने कुछ डेटा फीड किया, ठीक है, अगर उसको लॉन्ग तरीके से उसको एनालाइज करोगे तो एक प्रेडिक्टेबल बात आप बोलने वाले हो या कुछ एक एनालिसिस बोलने वाले हो। बट अगर सेम एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है तो इसका मतलब या तो डेटा खराब है या डेटा में कुछ इशू है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेन करना उस चीज़ को, प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक है आप एआई बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, अच्छा क्या इसका आउटपुट होगा, अच्छा हम इस तरीके से जाएंगे तो ये आउटपुट आ रहा है, क्या इससे भी यही आउटपुट आ रहा है, क्या ह्यूमन वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके मॉडल्स के साथ आपको। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक गलत एआई मॉडल बन जाता है जो, ठीक है, जो ऑब्सीन इमेजेस बनाने के लिए बना दिया गया है, ठीक है, किसी की भी, नाउ अकाउंटेबिलिटी तो डेवलपर की है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यूजर की भी है ना। मैंने बोला ना स्टेक होल्डर सारे यूज होंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यूजर की भी होगी। व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस द पर्सन इज शोइंग। तो दीज प्रिंसिपल्स आर इन रियलिटी कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द एआई इन एथिक्स। अगर आपका एआई मॉडल इन चीज़ों का ध्यान रखना है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने देख लिया स्टेक होल्डर्स, वैल्यूज, ये वैल्यूज कुछ कंसर्न्स हाईलाइट करते होंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड कंसर्न्स वन बाय वन कि व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स इन्वॉल्व। ठीक है, कौन से एथिकल कंसर्न्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट हम एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, ये जनरली हम यूज करते हैं मेडिकल टर्म्स में, नॉन FICIENCE, ठीक है, सॉरी FICENCE। इसका एक ही मतलब होता है, फर्स्ट डू नो हार्म। ये मेडिकल में होता है, उनकी हिपोक्रेटिक जो ओथ होती है ना उसी के अंडर ये भी आता है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एआई के थ्रू हमें हार्म अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल दैट टैक्सी डिसीजन बाय अवर गडकरी सर, इट फॉलोड द प्रिंसिपल, ठीक है, इट फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मालफिसेंस, जहां पे उन्होंने कहा कि यार ये एआई मैं यूज तो कर लूंगा, ड्राइवरलेस कार लोग यूज भी कर लेंगे, टैक्सीज आ जाएंगी, बट इट विल कॉज हार्म। व्हाट हार्म, हार्म टू द जॉब्स ऑफ आवर टैक्सी ड्राइवर्स विच कंस्टिट्यूट अ ग्रेट चंक। तो इतनी सारी फैमिलीज को मैं जॉब्स कहाँ से दूंगा, फेयर एनफ। सेकेंड, यार एआई चलता किस पे है, डेटा पे, तो डेटा किसी का तो होगा, वेदर आई नो दैट माई डेटा इज बीइंग यूज्ड। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, मेरे को एक बीमारी है, ठीक है, कोई एक बीमारी है मेरे पास, मैंने देखा मेरे पास अचानक से फ़ोन आ रहा है एक कंपनी का, सर इस बीमारी का इलाज के लिए ये सबसे बेहतरीन इलाज है, ये बेस्ट हॉस्पिटल है, आपको इतना करवाना है। अब मेरे दिमाग में आ गया कि यार शायद बहुत बड़ी बीमारी है, क्या मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अब वो तो सेल करने लगे, अब हो सकता है मिस सेलिंग भी हो, रॉन्ग सेलिंग भी हो, इवन दैट इज़ एन एथिकल, बट मैं कंसर्न में आ गया हूँ। बट मैं अब ये सोच रहा हूँ यार मेरा डेटा कहाँ से गया, मैं तो, अच्छा अब मुझे समझ में आया, मैं तो गया था शॉप पे एक पैरासीटामोल लेने क्योंकि मेरे बदन में दर्द था, ठीक है, एंड वो नॉर्मल है, बट उन्होंने सोचा हाई ग्रेड फीवर है, तो मेरे पास जो फ़ोन आया वो पूरे का पूरा टेस्ट बताने लग गए मुझे कि ये भी करवा लो, आपको ये हो सकता है, आजकल हाई फीवर में इतने केस आ गए हैं, इतने लोग एडमिट हो गए हैं, तो फोमो क्रिएट किया। ठीक है यार, मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा तो मेरे को दिक्कत हो सकती है कि मेरी दिक्कत है, नहीं उसे वेरीफाई कर रहा था, एक तरह से बिना चाहते हुए भी मुझे अपने टेस्ट बेच गए। हुआ होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो वेदर जिस केमिस्ट वाले से मैंने ये सब दवाइयाँ ली थी, एक पैरासीटामोल ली थी, क्या उसने मेरे से इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली कि मेरा डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। तो बेसिकली इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया जा रहा डेटा इकट्ठा करते हो, ये एक एथिकल कंसर्न है। ठीक है, अब मॉडल तो ट्रेन ह्यूमन ही कर रहा है, तो बायसनेस को तो हम बात ही नहीं कर सकते।
अब बायसनेस जैसे ह्यूमंस में कॉग्निटिव बायस होती है कि हमें लगता है कि नहीं यही सही है, इस तरीके से है, नहीं यार ये कंटेंट बनाने का तरीका ठीक नहीं है, कुछ लोगों में होता है कॉग्निटिव बायस। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे भी तो बायस होगी, यहाँ पे कॉग्निटिव नहीं है तो अल्गोरिथमिक बायस होगी। रिमेंबर द केस कि एक बूढ़े अंकल को बचाया जाए या एक बच्चे को बचाया जाए। बच्चा ऑलरेडी एक्सीडेंट से है, सपोज मैं उस पर मेरी कार और नहीं भी लगेगी तो भी उसकी डेथ हो जाएगी, तो मैं इस केस में तो बूढ़े अंकल जी को बचा लूँ। बट मैंने एल्गोरिदम में यही दे रखा है यंग पॉपुलेशन को बचाना है, तो बायस आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। मैंने एआई में देखा किसी के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसको पर्सनलाइज अटेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अच्छा कर लेगा। मैंने एक बायस डाल दिया पर्सनलाइज लर्निंग के लिए, तो टीचर को लग रहा है ये बच्चा तो मार्क्स ला ही रहा है, लेकिन पेपर से जस्ट थोड़े दिन पहले उसके घर में मम्मी पापा की फाइट हो गई। नाउ व्हाट? उस बच्चे को मेंटरशिप चाहिए टीचर की, बट नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने एल्गोरिथम बायस ये कर रखा है कि जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उसको मेरी जरूरत नहीं है, वो तो अच्छा कर ही लेगा। ठीक है, फोर्थ, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्यों? डेवलपर कहेगा मैंने तो डेवलप किया था भाई, प्रॉम्प्ट इसने डाला। प्रॉम्प्ट वाला कह रहा है मुझे पता नहीं था जी इतना गंदा हो जाएगा, इन्होंने वैसा बनाया क्यों? गवर्नमेंट कह रही है इसमें अंदर कैसे करूं, मेरे पास कोई रूल नहीं है। तो अगर आप देखोगे अकाउंटेबिलिटी तो शिफ्ट होती जा रही है ना, क्लियर कट गाइडलाइंस ना होने की वजह से। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हमारी शिफ्ट होती जा रही है क्लियर कट गाइडलाइंस ना होने की वजह से। तो शिफ्टिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज फर्दर क्रिएटिंग हैवॉक। क्लियर है? नाउ इश्यू ऑफ प्रिवेसी। भाई मेरा डेटा, आप कुछ भी बना रहे हो, आप कुछ भी बेच रहे हो, मुझे, मैं सर्च करने गया मुझे टीवी लेना है, वो डेटा चला गया और अब जबरदस्ती टीवी, लोगों को पता लग रहा है कि इसके घर में टीवी नहीं है। ये चीजें अदर चीजों के साथ भी हो सकती हैं, तो प्रिवेसी का हनन। गेटिंग इट? देन एआई का वेपनाइजेशन भी हो रहा है, उसे एज अ वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। कंसर्न ये है ऑटोमेटेड एआई ड्रिवन वेपन्स, और जैसे केमिकल ड्रोन होते हैं, ठप, अभी तो सैटेलाइट वगैरह की जरूरत पड़ी नहीं, कुछ नहीं, वो देखेगा टेम्परेचर देखेगा, उसमें सब एआई ड्रिवन होगा, जहां सबसे ज्यादा आबादी कूद पड़ो, केमिकल ड्रोन, सुसाइड ड्रोन्स, वेपनाइजेशन हो जाएगा पूरा एआई का। ठीक है, देन अनदर इंपॉर्टेंट कंसर्न इज अबाउट द सस्टेनेबिलिटी। इट हैज बीइंग सेड, स्टडी में पता लगा है कि ये जो चैट जीपीटी 4 आया है ना, ये अप्रोक्सीमेटली यूज कर रहा है 300 टन्स, कितना? 300 टन्स ऑफ CO2। 300 टन CO2 का यूज हो रहा है यहां पे। इजी? समझ रहे हैं आप लोग? दिस इज द कंसर्न। नाउ इतने सारे कंसर्न्स हो गए, तो यार ऑब्वियसली एआई को यूज करना होना है ना। मैं ये कह रहा हूं कि एआई प्राइवेट के लिए तो यूज होगा। अगला एक कंसर्न जो है एआई का, बेसिकली अगर हम देखो 6, 7, एक 8th कंसर्न और ले लेते हैं कि यार ये डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, रिच पुअर, ठीक है, डिस्पैरिटी। रिच तो अफोर्ड कर लेगा ना एआई को, पुअर नहीं कर पाएगा, तो इसको कहीं कुछ मिलेगा। अब देखो पुअर का नुकसान कैसे होगा, बिकॉज एआई उन सेक्टर्स में यूज हो रहा है जिसको हमने पब्लिक गुड या सोशल गुड बोला था। सोशल गुड कौन से सेक्टर्स हैं ऐसे? सब भूल जाओ, सिर्फ 2 चीजें याद रखो, हेल्थ, एडुकेशन। ठीक है, हेल्थ, एडुकेशन। अब ये देखो, हेल्थ में पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात कर लो चाहे तो आप, चैट जीपीटी सबसे पहले यही देता है, मैंने भी किया होगा तब से अच्छा लग गया है। ठीक है, एक ये वर्ड पर्सनलाइज्ड हर जगह घुसा देता है जैसे यही करोगे। सिमिलरली पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देने में भी हेल्प करेगा एआई, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड ऑल। नाउ अगर पब्लिक सोशल गुड में गवर्नमेंट ने ही एक्सपेंडिचर नहीं किया तो ये जो डिस्पैरिटी है ये तो बढ़ती चली जाएगी ना यार। सो बेसिकली इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड
जस्टिस। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल के तो अगेंस्ट हो गया ना, ठीक है। So now the AI is there, तो concerns are there। अब इन concerns को दूर करने के लिए कुछ हमने वैल्यूज तो ऑलरेडी डिसाइड कर ली, अब उन वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन इनिशिएटिव्स, है ना, उन इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग AI। फर्स्ट इनिशिएटिव दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज यूनेस्को के इनिशिएटिव्स है। यूनेस्को ने बनाया क्या, इसने बनाया AI एथिक्स फ्रेमवर्क, AI एथिक्स फ्रेमवर्क। ठीक है, अब AI एथिक्स फ्रेमवर्क इसने क्या बोला कि देखो, सबसे पहले AI का काम है रिस्पेक्ट करना। ठीक है, इट सेज AI का काम है रिस्पेक्ट करना। किस चीज के रिस्पेक्ट? इट विल रिस्पेक्ट अबाउट द ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम। ठीक है, बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल फ्रीडम। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीडम? राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फॉर्म ओपिनियन। ठीक है, देन इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन डिग्निटी एज वेल। तो डीप फेक्स एंड ऑल नॉट अलाउड। तो यूनेस्को का AI एथिक्स फ्रेमवर्क ही कहता है डीप फेक वगैरह मुझे अलाउड नहीं है। ठीक है, देन इट टॉक्स अबाउट कि लिव इन पीसफुल एंड इंटरकनेक्टेड सोसाइटी। अब इंटरकनेक्टेड विल बी देयर व्हेन द थिंग्स आर बीइंग शेयर्ड, until unless things are not shared। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल आर लिमिटेड टू अ सेक्शन, तब तक वो नहीं होगा। तो एक डिफरेंट सोसाइटी बन रही है और वो पीसफुल भी नहीं रहेगी। जब विद इन द सोसाइटी देयर इज सेक्शंस, एक ज़्यादा रिच हो रहा है, एक टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं तो कन्फ्रंटेशन आएगा ना, जब ये डिवाइड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा ये बोलता है कि पीसफुल एंड, ठीक है, इंटरकनेक्टेड सोसाइटी, इंटरकनेक्टेड सोसाइटी एथिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है, जब आप वर्ड देखें इंटरकनेक्टेड, तो एथिकल वर्ड आपको आना चाहिए शेयरिंग। तो जो शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ AI है, यूनेस्को उसको प्रमोट करता है। यूनेस्को विल प्रमोट शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ AI। ठीक है, सी कहता है डाइवर्सिटी विल बी देयर, बट AI शुड प्रमोट इंक्लूसिवनेस एट द सेम टाइम। ठीक है, इंक्लूसिवनेस एट द सेम टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसमें डी पॉइंट की बात करेगा, वो कहता है हमारा इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट फ्लरिश करना चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम शुड फ्लरिश। तो बेसिकली यूनेस्को इज टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल AI, क्योंकि वी नो दैट डेटा सेंटर्स आर कंज्यूमिंग अ हेल लॉट ऑफ एनर्जी and that energy is generated from the limited resource। ठीक है, now here just to mention one thing, when we are talking about a lot of the energies, you remember Meta, Google's, they are going to have their own small modular reactors। Reason, they are showing their responsibility towards the environment। Nuclear energy is greener, cleaner energy, and if your data centers are being run through the energy generated by the nuclear reactors, it means these companies, these multinational companies are in reality responsive towards the need of the hour। Okay, they are responsive towards the need of the hour। Clarity? Fair enough। Now let's talk about principles given by Institute of Electrical and Electronic Engineers। ठीक है, तो सेकेंड वन, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। They gave a framework, ethically aligned design। Okay, so it's ethically aligned design। Okay, so they give
ethically aligned design. Okay, so you can also call them IEEE giving EAD. ठीक है, ethically aligned design. So basically general principles are what it says. Let's go this way. Okay, so EAD principles. EAD principles, ethically aligned design. First, it says human rights. Please draw it, then I will explain it one by one. Okay. Second, it also talks about well-being. Third, it will talk about data agency and effectiveness. Okay. Then transparency and accountability. Transparency and accountability. Awareness of misuse. So people should know that it can be misused. Awareness of misuse. Last one, competence. So IEEE ethically aligned design talks about the following principles. It says human right, that AI should respect the human rights. It should put humans at the center of its delivery. Okay, any AI model which is against the interest of human model should be not utilized, should be not used. Then it talks about it should bring well-being. It has a cost, ठीक है, environmental cost, economical cost. So AI cannot be used for just for the fun. It should be used for the well-being. तो ठीक है, ये concern था. Then it talks about the data agency. It talks about the rules, regulation, behavior of the data agency, their way to store data, their way to collect data, their way to harness that data or analyze that data on the basis of AI with the use of AI should be a proper, following a proper framework. Okay, now effectiveness, how much effectiveness it is. If the effectiveness is zero, AI is giving wrong results and you're consuming so much of energy, feeding so much of data, then it is of no use. So you have to enhance the effectiveness of the AI to ensure to rightly optimize its usage. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एज डिस्कस्ड कि डेटा कहां से आया, कहां गया, कितना गया, अकाउंटेबिलिटी, हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल जो आपके साथ इश्यूज हो रहे हैं. देन अवेयरनेस ऑफ मिसयूज, वेदर पीपल आर अवेयर अबाउट द मिसयूज और नॉट. यहाँ आपने फोटो तो डाल दी चैट जीपीटी पे गिबली इमेज बनाने के लिए, बट वो फोटो कहाँ स्टोर हुई है, कैसे यूज हो सकती है, हैव यू एवर थॉट? आपने खुद ही अपना राइट टू प्रिवेसी ओपन एआई को सरेंडर कर दिया. कैसी कैसी फोटोज लोगों ने डाली है, मतलब जिम की फोटोज डाल रहे हैं, चाहे वो अपनी जिम की फोटो खुद ना डाल पाए स्टेटस में, लेकिन गिबली वाली डाल रहे हैं क्योंकि कार्टून है. गेटिंग इट? दिस इज हाउ द थिंग्स आर. लास्ट, कंपिटेंस. सो बेसिकली ये जो रिच पुअर का डिवाइड है, हैव और हैव नॉट का जो डिवाइड है, ये कंपिटेंस सबको देनी पड़ेगी. ठीक है, तो स्किल, रिक्वायर्ड स्किल, उसका डेमोक्रेटाइजेशन जरूरी है. डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब वो स्किल सबको मिले, रिच को, पुअर को. यहां पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फेयर एनफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड इनिशिएटिव. ठीक है, थर्ड इनिशिएटिव इज अबाउट नीति आयोग, रिस्पॉन्सिबल एआई टॉक्स अबाउट. ठीक है, तो नीति आयोग क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबल एआई. ओके, RAI, राय. ठीक है, अगेन फीचर्स लाइक सेफ्टी, रिलायबिलिटी. ठीक है, जो पहले है ना वही, इंक्लूसिविटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रिवेसी, इक्विटी, सिक्योरिटी, ये प्रिंसिपल्स हैं नीति आयोग के भी. रिस्पॉन्सिवनेस. ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस कौन दिखाएगा? जो इक्विटी में बिलीव रखेगा. ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस कौन दिखाएगा? जो इक्विटी में बिलीव रखेगा. क्लियर?
दैट इज द केस विद द नीति आयोग, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे दिखाओगे? जब आप सेफ्टी सिक्योरिटी पे बात करोगे। रिस्पॉन्सिवनेस आप कैसे दिखाओगे? जब आप रिलायबल होगे। If I'm not the reliable person, even if I respond towards you, what does it matter? It should not matter. Getting it? Sorted? Fair enough? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनिशिएटिव, और जिसको लिखने से मुझे ऐसा लगता है आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन। तो इसने टीयर्ड सिस्टम में डिवाइड कर दिया एआई को, ठीक है। सो पहली उसने बात की ए पे ह्यूमन इन लूप, ठीक है, ह्यूमन इन लूप की बात की। देन ह्यूमन ऑन द लूप। अभी समझा देता हूं क्या है, पहले एक बार लिख लो आप लोग, ह्यूमन ऑन द लूप। देन ह्यूमन इन कमांड, ह्यूमन इन कमांड, ठीक है। 3 जगहों पे हमने बात की। इट सेज डायरेक्ट इंटरवेंशन, जहां पे रिक्वायर्ड हो तो वो ह्यूमन इन लूप, ठीक है, डायरेक्ट इंटरवेंशन। सो ह्यूमन इन लूप टॉक्स अबाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल अ क्राइम इज देयर, तो ह्यूमन शुड डायरेक्टली इन्वॉल्व। सेकेंड, ह्यूमन ऑन लूप, इट टॉक्स अबाउट मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग विथ कैपेबिलिटीज, ठीक है, टू ओवरराइड एनीथिंग। बेसिकली अगर एआई ने कुछ दिया तो उसको मॉनिटर करो, और कुछ गलत दे दिया तो उसको ओवरराइड करने की कैपेबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम है, उसको लगा सामने से एक प्लेन आ रहा है और वो तो हमारी का नहीं है, उसको मैं शूट करूंगा, बट मैंने देखा यार वो प्लेन तो हमारे एयर स्पेस में कोई आ रहा है, वो मतलब दूसरी कंट्री का भले ही है, बट इट इज़ अबाउट द वहाँ के टर्बुलेंस हो रहा है उस प्लेन में कुछ, तो उसने परमिशन मांग रहा है हमसे लैंड करने के लिए, और परमिशन नहीं दे पा रहे हो तब भी लैंड कर रहा है। अब उसमें 300 पैसेंजर्स हैं। अब एआई तो कहेगा अपने वेपन सिस्टम को शूट, बट मैं अगर ह्यूमन ऑन लूप हूं तो ओवरराइड करूंगा। तो बेसिकली इट्स टॉक्स अबाउट मॉनिटरिंग द एआई, एट द सेम टाइम राइट टू ओवरराइड, okay, right to override. So Montreal Declaration will talk about these things. Fair enough. Then human in command, ठीक है, strategic on site oversight of objectives। तो मतलब जो objectives जो हो रहे हैं वो ह्यूमन की कमांड की वजह से हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ अच्छा एआई है, ठीक है, एआई से मैं वेदर मॉडल बनवा लेता हूँ, बारिश होगी कि नहीं होगी, ह्यूमन कमांड दे रहा है उसको, बट ह्यूमन कमांडिंग पोजीशन पे है यहाँ पे, ठीक है, फेयर एनफ। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट, ठीक है, फेयर एनफ, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट मोर देन एनफ है। क्लियर है, सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन कोड्स विच विल हेल्प यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ कोड विच वॉज गिवन बाय डॉक्टर काई फू ली, एआई सुपर पावर्स के हैं, ठीक है, किसने दिया ये कोड? डॉक्टर काई फू ली, ठीक है, एआई सुपर पावर्स इनकी कंपनी का नाम है। बहुत अच्छा कोड है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा आंसर राइटिंग के लिए, मुझे बताना कमेंट पे अगर आपसे आंसर लिखा गया कि नहीं। ये कहता है एआई वोंट रिप्लेस ह्यूमन, ये कहते हैं कि एआई वोंट रिप्लेस ह्यूमंस, ठीक है, एआई वोंट रिप्लेस ह्यूमंस, बट, ठीक है, ह्यूमंस विद एआई, ठीक है, कह रहा है बट ह्यूमंस विद एआई will replace humans without AI। ये कह रहा है कोड कि AI ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बट जिनके पास राइट स्किल्स नहीं होंगी। बेसिकली अगर कोड को एनालाइज करो, हमने एक जगह भी बात की थी कंपिटेंस की, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द कंपिटेंस। कंपिटेंस से हैव नॉट और हैव वाला जो ब्रिज है वो हमें, सॉरी डिस्पैरिटी है उसको हमें ब्रिज करना है। दिस इज व्हाट द बेसिकली डॉक्टर काई फू ली इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है।
पीएम मोदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला एआई इज राइटिंग कोड फॉर ह्यूमैनिटी इन दिस सेंचुरी। एआई इज राइटिंग कोड फॉर ह्यूमैनिटी। अब कोड ह्यूमैनिटी के लिए कैसे लिखेगा? जब ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो एआई कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है उस पर डिपेंड करेगा। अब खोल दीजिए, अच्छा हेल्थ केयर में कौन सी प्रॉब्लम है, एजुकेशन में कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। जस्ट इमेजिन ए सिनेरियो, एआई की वजह से वर्चुअल सैटेलाइट वगैरह की यूज करके मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बट किसी गांव के स्कूल में मेरी पूरी इमेज दिख रही है, मैं एआई से बात कर रहा हूँ, दे आर हैविंग द रियल फीलिंग एज इफ आई एम फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। तो वर्चुअल में भी रियल का मजा, गेटिंग इट? तो दिस इज व्हाट द मोदी जी वांटेड टू कन्वे। एआई इज राइटिंग कोड फॉर द ह्यूमैनिटी इन दिस सेंचुरी, ठीक है। तो मोदी जी की भी स्टेटमेंट है, लिख लेते हैं दो कोट्स। एआई इज राइटिंग कोड फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, इन दिस सेंचुरी, इन दिस सेंचुरी। ये किसने बोला? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आ गई आपकी? अब डिलेमा क्या है? पहला डिलेमा देखो, कंसर्न्स हमने देख लिया, अब डिलेमा देख लो। दो डिलेमा तो हम आपको साफ साफ बता देते हैं। कंसर्न्स हो गए एथिकल, तो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल एथिकल डिलेमा एज वेल। मैं बार बार कह रहा हूं डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है। ये सेकंड, जॉब रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, जॉब्स वर्सेस एफिशिएंसी। यार मैं एआई से काम करवा लूँ यार, जॉब चले जाऊं, ठीक है, सिंपल। थर्ड, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी वगैरह के मैं ज़्यादा सोचूं या प्रोडक्टिविटी के बारे में ज़्यादा सोचूं कि मेरी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। अब बेसिकली अगर मेरी वैल्यूज हैं तो इसका आंसर क्या है एआई के डिलेमास का? ऑलवेज रिमेंबर गोल्डन मीन ऑफ अरिस्टोटल, ठीक है। तो कोई सा भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है हमको, ना सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है, ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी। तो बीच में कहीं ये मैच होगा, वहीं डिलेमा सॉल्व होगा, और वो केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा। और अगर ऐसा कुछ भी हो सकता है जहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं तो वो तो ज़रूर करना है, ठीक है, फेयर इनफ। नाउ कंसर्न्स हो गए, तो चलते हैं क्लास की लास्ट की साइड। लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड एज वेल, है ना। तो वे फॉरवर्ड पे बात करते हैं। वे फॉरवर्ड, सबसे पहले हमें डर लग रहा है कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस, सो एआई शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक ओनली। एआई शुड बी human centric. A human centric AI means the AI with certain values, the 7 values that we discussed in the starting itself, okay, the core principles of the AI. If they are being followed, the AI will be human centric and it will not be damaging any human interest. So AI is the reality, we cannot say no to reality when that is the harsh truth, ठीक है। तो here you should remember नीति आयोग again, AI for all approach given by Niti. So you can use these things in your conclusion as well, okay. Now if AI is there, see, we have done n number of things. If we build a dam, we do environment impact assessment. If we bring out any developmental project in the tribal areas, we do social impact assessment. So environmental impact assessment is there, social impact assessment is there. So if AI is there, can we not go for AI impact assessment? Where emotion impact assessment will be a critical role, because emotions comes from the humans only, na. So AI impact assessment can also be there, fair enough. Then third, we need to have international cooperation. International cooperation. Now international cooperation, we have Action AI Summit, Paris Summit, we have Blood Justice Summit, we had Seoul Summit.
Okay, so we'll talk about the four values of the Paris event in the next part of the lecture. Okay, don't you worry. Okay, now fourth, we know that energy is being consumed, so we need sustainable AI. Companies going for their own small modular reactors is one of the right way to ensure the sustainability. Fair enough. Now, last but not the least, let's talk about the last man. So yes, inclusiveness in the AI and ensuring equity in the usage of AI amongst the nation, among the different sections of society is this the need of our. So if these values are missing, so AI is being actually used by oligarchs. Okay, monopoly there can be a case, है ना? So basically, when the new technology is being used by few, so they and they act as an oligarch in the field of technology as well. Fair enough. And to promote all these, we need to promote ethical AI literacy, because those who have, they will feel responsible towards those who do not have, and those who have not, they will be aware through the literacy campaign. Yes, if we do not get into the AI, then as Lee Sahab have said that humans with AI will replace human with AI. So this is the journey that we have to bridge through ethical AI literacy. Okay, so here making AI public and social good is need of our. Okay, here making AI public and social good is the need of our. Fair enough. Just a small summary of the Paris summit in the last, what all has happened in the recent Action AI summit Paris. Okay, Action AI summit Paris, where India co-chaired, and the next summit will be held in the India as well. Okay, first principle they talked about, it was about fairness and accessibility. So the focus was on fairness and accessibility. So if you look at the following pictures, it talks about nothing but giving AI to everyone. Fairness, सबको मिलेगा, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कर नहीं पा रहे, इट्स अलग. एक्सेसिबिलिटी सबको मिलेगा, है ना? फेयर. तो अब these are nothing but democratic values. So these principles will in reality democratizing AI, will lead to democratization of AI or democratizing AI. Then it talks about transparency and accountability. अगर आप देखो वो 7 प्रिंसिपल ना कहीं से दोबारा रिपीट हो रहे हैं, वो याद रखोगे और बाकी कहीं पे भी सेम नाम लिख के यूएन, पेरिस समिट, ब्लेचेटले समिट, यूएन, जो मन करे लिख दो, वो रिपीट होने ही हैं, कुछ कर ही नहीं सकते. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अगर मैं आपको कहूँगा कि ये ब्रिंग करेंगे प्रोबिटी इन गवर्नेंस, तो एथिक्स से थोड़ा सा हम लिंक कर देंगे. ठीक है, अब प्रोबिटी इन गवर्नेंस लाएगा तो ऑब्वियसली जैसे इंटीग्रिटी प्रमोट करेगा एआई एंड ऑल, तो एआई इंटीग्रिटी भी प्रमोट करेगा. दिस इज व्हाट वी कैन से. ठीक है. थर्ड, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट. अगर पुराने स्लाइड से आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं, ह्यूमन राइट्स कैसे, अब आप मुझको बोल दो कि अच्छा पहला तो ह्यूमन राइट मेरा प्राइवेसी का ख्याल रखो यार, मेरी फोटोज वगैरह इधर से उधर नहीं जानी चाहिए, डेटा मेरा इधर से उधर नहीं चाहिए. ठीक है, प्राइवेसी के साथ साथ आप मेरे से बात करते हो, मेरा ह्यूमन राइट है कि ठीक है, राइट टू बी फॉरगटन, मेरे फालतू का डेटा ना रहे, तो वहां पे भी बात कर सकते हो. ठीक है, तो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. क्यों?
हाई कॉस्ट ऑफ एआई, एआई का हाई कॉस्ट है, ठीक है। अब ये हाई कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या यूज हो रहे हैं? हमारे रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्स में सस्टेनेबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ या एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करता हूँ, तो हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं सस्टेनेबिलिटी का। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वी हैव borrowed this earth from our upcoming generation, ठीक है। ये कह रहा है कि वी हैव borrowed earth from upcoming generation but not inherited earth from ancestors। तो हमको रिसोर्स एज इट इज वापस करने हैं, ठीक है। हमको रिसोर्स एज इट इज वापस करने हैं का मतलब वी हैव टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी। सो बेसिकली दिस इज व्हाई वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द यूसेज ऑफ एआई। क्यों? क्योंकि जो डेटा सेंटर्स में एनर्जी यूज हो रही है वो हमारी खुद की नहीं है, हम रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी दोज रिसोर्सेज बिलोंग टू अवर फ्यूचर जनरेशन। Okay, so that's all from my side. And this lecture of 1 hour, I assure you this would have been the best lecture that you have watched till now on the AI in ethics. And again, it is one of the most important theme of this year's mains examination. I hope it helps you. That's all from my side. If you want to reach out or give the feedback, you can give in the comment section, okay? Or you can message me at mentorship with Utkarsh or my Telegram. Fine? Chale then. Bye bye. Take care. All the best. Jai Hind.